નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીને તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। ક્રિકેટ રસિકો માટે આનંદના સમાચાર। 7 જાન્યુઆરીએ રાજકોટમાં રમાશે મેચ। ભારત શ્રીલંકા વચ્ચે રમાશે T20 મેચ। તો ખંડેરી સ્ટેડિયમમાં ક્રિકેટ મેચ રમવામાં આવશે। તો 7 જાન્યુઆરીએ રાજકોટમાં મેચ રમાવા જઈ રહી છે, જેને લઈને જે ક્રિકેટ રસિકો છે તેઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। તો ભારત શ્રીલંકા વચ્ચે આ મેચ રમાશે। ખંડેરી સ્ટેડિયમમાં રમાશે ક્રિકેટ મેચ। આરબીઆઈએ રેપો રેટ 0.35% વધાર્યો છે। આ વર્ષે 5મી વાર રેપો રેટ વધ્યો છે। રેપો રેટ વધીને 6.25% પહોંચ્યો છે। અગાઉ 5.9% હતો રેપો રેટ, હવે 0.35%ના વધારા સાથે 6.25% થયો છે। આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંત દાસે માહિતી આપી છે। તો મોંઘવારી હજુ ચિંતાનો વિષય છે તેવું પણ તેમણે કહ્યું। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર દિલ્હીથી। સંસદના શિયાળુ સત્રનો પ્રારંભ। આ શિયાળુ સત્ર ખૂબ જ મહત્વનું છે। પીએમ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું, તમામ પક્ષોને પ્રધાનમંત્રી મોદીનો આગ્રહ। મને વિશ્વાસ છે તમામ પક્ષો મૂલ્યવાન ચર્ચા કરશે। સંસદનું સત્ર ચાલવું ખૂબ જરૂરી છે। હું અલગ અલગ પક્ષના સાંસદોને મળ્યો। વિપક્ષ સાંસદ પણ માને છે બોલવાનો મોકો નથી મળતો। સાંસદો માને છે કે ચર્ચા ન થવાથી નુકસાન થાય છે। સત્ર વધુ સારું બનાવવા સામૂહિક પ્રયાસની અપીલ કરવામાં આવી છે। આ સત્રમાં મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવશે। તો ભારતની G20ની આગેવાની મળવી મોટી વાત છે। સંસદના સત્રમાં પણ તેનું પ્રતિબિંબ મળશે। कालीन सत्र का आज प्रथम दिवस है। ये सत्र महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 15 अगस्त के पहले हम मिले थे। 15 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए और अब हम अमृतकाल की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय हम लोग आज मिल रहे हैं जब देश को, हमारे हिंदुस्तान को G20 की मेजबानी का अवसर मिला है। विश्व समुदाय में जिस प्रकार से भारत का स्थान बना है, जिस प्रकार से भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है, ऐसे समय ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, लेकिन ये G20 समिट एक समग्र रूप से मैं भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इस सत्र में एक और भी सौभाग्य है कि आज पहली बार हमारे उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ करेंगे। उनका ये पहला सत्र होगा और पहला दिन होगा। इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नए नए अवसर, उन सबको ध्यान में रख करके कई निर्णय करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्य वृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे
दिशा को और स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे। पिछले दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी न किसी सांसद से मेरी अनौपचारिक मुलाकातें जब भी हुई हैं, एक बात जरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में हो हल्ला और फिर सदन स्थगित हो जाता है, उससे हम सांसदों का नुकसान बहुत होता है। युवा सांसदों का कहना है कि सत्र न चलने के कारण, चर्चा न होने के कारण हम जो यहां सीखना चाहते हैं, हम जो समझना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है, हम उससे अछूत रह जाते हैं। તો પરિણામ પહેલા પ્રદેશ કોંગ્રેસને ડર સતાવી રહ્યો છે। પરિણામ પહેલા કોંગ્રેસના ઉમેદવારો સાથે બેઠક, કોંગ્રેસ નેતાઓ ઉમેદવારો સાથે વર્ચ્યુઅલી બેઠક કરશે। પ્રદેશ પ્રભારી રઘુ શર્મા પ્રદેશ પ્રમુખ કરશે બેઠક। મતગણતરી પહેલા ઉમેદવારો પાસેથી ફીડબેક લેવાશે। મહત્વનું છે કે બપોરે 3 વાગ્યે પરિણામ બાદની રણનીતિની તૈયારી કરાશે। તો ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને રાજસ્થાન લઈ જવાની હિલચાલ, સૂત્રો દ્વારા માહિતી। ઉદયપુર રિસોર્ટમાં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને લઈ જવાશે। પરિણામ બાદ કોંગ્રેસ આખરી નિર્ણય લેશે। તો કોંગ્રેસના જાણકાર સૂત્રો પાસેથી મહત્વની માહિતી મળી રહી છે। પરિણામ બાદ જે પ્રકારની સ્ટ્રેટેજી હાલ જોવા મળી રહી છે, તો વધુ માહિતી માટે પ્રણવ જોડાયા છે લાઈવ। તો પ્રણવ પાસેથી વધુ માહિતી લઈએ। પ્રણવ, જેવી રીતે કોંગ્રેસ દ્વારા જે હિલચાલ ચાલી રહી છે, જે રણનીતિ ઘડવામાં આવી રહી છે, શું અપડેટ્સ છે આપની પાસે? ચોક્કસ ન્યૂઝ પર એક્સક્લુઝિવ માહિતી એ પ્રમાણે આવી રહી છે કે કોંગ્રેસના જાણકાર સૂત્રો જ આ માહિતી આપી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટીને હજુ પણ ક્યાંક આશાવાદ છે કે આ વખતે તેઓ સરકાર બનાવવા જઈ રહ્યા છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીનો જે ટાર્ગેટ હતો 125, પરંતુ તે અચીવ નહીં થઈ શકે, પરંતુ તેઓ માની રહ્યા છે કે 80 થી 90 સીટો કોંગ્રેસ પાર્ટીને હાલ અહીં મળી શકે છે। તો તેને લઈને કોંગ્રેસ પાર્ટીના જે તમામ જે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ હશે, જે ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો હશે, એ તમામ લોકોને રાજસ્થાન શિફ્ટ કરવાની રણનીતિ છે કોંગ્રેસ પાર્ટી બનાવી રહી છે। તે કોંગ્રેસના જાણકાર સૂત્રો અહીં માહિતી આપી રહ્યા છે। એક અંદાજ માનવામાં આવી રહ્યો છે, તેને લઈને જ બપોરના 3 કલાકે પ્રદેશ પ્રમુખ અને પ્રદેશ પ્રભારીએ એક અગત્યની બેઠક બોલાવી છે। તેમાં તમામ કોંગ્રેસના જે સિનિયર નેતાઓ છે આ બેઠકમાં હાજર રહેશે અને નિર્ણય લેવામાં આવશે। આખરી નિર્ણય આ બેઠકમાં લેવામાં આવશે, પરંતુ હાલ જે માહિતી મળી રહી છે એ પ્રમાણે એ આવી રહી છે કે જે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ હશે કે તે લોકોએ રાજસ્થાન જવું હશે તેના માટે રિસોર્ટ છે તે બુક કરી દેવામાં આવ્યું છે। ઉદયપુરનો આ રિસોર્ટ છે તેની અંદર તમામ જે ધારાસભ્યો છે તેને લઈ જવામાં આવશે, કારણ કે હર હંમેશા માટે ચૂંટણીના પરિણામો આવે છે ત્યારબાદ કોંગ્રેસ પાર્ટીના અનેક ધારાસભ્યો છે તે તૂટતા હોય છે, તેનો કોંગ્રેસ પાર્ટીને ડર લાગતો હોય છે। પરંતુ આ વખતે કોંગ્રેસ પાર્ટીને કંઈક આશાવાદ। જી બિલકુલ પ્રણવ, આપને અટકાવવા માંગીશ। પીએમ મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં। आपको इस सदन की तरफ से और पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने एक सामान्य परिवार से आकर के संघर्षों के बीच जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्थान पर प्राप्त पहुंचे हैं वो देश के कई लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का कारण है। इस उच्च सदन में इस गरिमामय आसन को आप सुशोभित कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि किठाना के लाल उनकी जो उपलब्धियां लोग देश देख रहा है तो देश की खुशी का ठिकाना नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये सुखद अवसर है कि आज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे भी है। आदरणीय सभापति जी, आप तो झुंझुनू से आते हैं। झुंझुनू वीरों की भूमि है। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जिसने देश की सेवा में अग्रिम भूमिका न निभाई हो।
और ये भी सोने में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। मैं आपकी अध्यक्षता में इस सदन से सभी देशवासियों को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस सदन के सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से देश के आर्म फोर्सेस को सैल्यूट करता हूं। आज संसद का ये उच्च सदन एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है। साथ ही ये समय अमृतकाल के आरंभ का समय है। ये अमृतकाल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। आपके मार्गदर्शन में हमारे सभी सदस्यगण अपने कर्तव्यों का प्रभावी पालन करेंगे। ये सदन देश के संकल्पों को पूरा करने का प्रभावी मंच बनेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है। इस कालखंड में देश अपने इस दायित्व को समझ रहा है और उसका पूरा जिम्मेदारी से पालन कर रहा है। आज पहली बार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसके पहले भी श्री रामनाथ कोविंद जी ऐसे ही वंचित समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे और अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव, गरीब और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिद्धि सिर्फ
साधनों से नहीं, साधना से मिलती है। आपने वो समय भी देखा है जब आप कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। गांव, गरीब किसान के लिए आपने जो किया वो सामाजिक जीवन में रहे हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, आपके पास सीनियर एडवोकेट के रूप में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इस सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि राज्यसभा में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट में मिला करते थे, और इसलिए वो मूड और मिजाज भी आपको यहां पर जरूर अदालत की याद दिलाता रहेगा। आपने विधायक से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर तक की भूमिका में भी काम किया है। इन सभी भूमिकाओं में जो एक बात कॉमन रही वो है देश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आपकी निष्ठा। निश्चित तौर पर आपके अनुभव देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति जी, आप राजनीति में रहकर भी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सबको साथ जोड़कर काम करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आपके लिए सबका वो अपनापन हमने स्पष्ट रूप से देखा। मतदान के 75% वोट प्राप्त करके जीत हासिल करना अपने आप में अहम रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां कहा जाता है नयति इति नायकः, अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है। आगे लेकर जाना ही नेतृत्व की वास्तविक परिभाषा है। राज्यसभा के संदर्भ में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस सदन पर लोकतांत्रिक निर्णयों को और भी रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व इस सदन को मिलता है तो मैं मानता हूं कि ये सदन के हर सदस्य के लिए सौभाग्य है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत की एक संवाहक भी रही है और उसकी शक्ति भी रही है। हमारे कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कभी न कभी राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी। इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा। सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे।
आदरणीय सभापति महोदय जी, पिछले सत्र तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी। ठहाके लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे। इसी के साथ मैं पूरे सदन की तरफ से, देश की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। તો સંસદના શિયાળુ સત્રનો પ્રારંભ થયો છે ત્યારે પીએમ મોદી આશા વ્યક્ત કરી કે આ જે સત્ર છે તે ખૂબ સારું રહેશે અને સાથે જ જે બાબતો છે, મહત્વની બાબતો, તેના પર ચર્ચા કરવામાં આવશે। આ શિયાળુ સત્ર કેમ મહત્વનું છે તે પણ તેમણે જણાવ્યું હતું। આ સત્ર દેશના સંકલ્પ પૂરા કરવાનું મંચ